Hello and welcome students to the SRBPS virtual classroom program. I am your biology educator Prerna Rathi. I hope you are all making complete use of our YouTube channel. Now let us come and see what I have got for you today. So now let us start with the process of DNA replication. As you have already done in the central dogma, we know the process where DNA creates its own copy is known as DNA replication. Watson and Crick children in the year 1953 proposed the scheme that DNA has a semi-conservative mode of replication. Semi मतलब आधा, conservative मतलब रखना. जब DNA अपनी कॉपी बनाता है तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल रख लेता है और एक स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज कर देता है. दिस इज नोन एज the semi-conservative model of DNA replication. According to this scheme, the two parental strands separate and each strand now acts as a template. Okay, it acts as a template for synthesizing the complementary strand. और जब बनते हैं तो दो डॉटर डीएनए बन जाते हैं. दोनों डॉटर डीएनए में आधा आधा यानी एक एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है और एक एक नया बना हुआ है. ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन था, इसका प्रूफ दिया था मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन favorite. It has like 18 minutes of generation time. बहुत जल्दी रिजल्ट देता है. Duplicating the result is very simple, plus basic media requirement is there. Fine. So in a medium containing heavy nitrogen, एक heavy isotope of nitrogen लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया हेवी नाइट्रोजन वाला, और उसके ऊपर हमने क्या किया, ई कोलाई को कल्चर किया. जब हमने ऐसे ई कोलाई को कल्चर किया बेटा, तो व्हाट हैपन, अब जो हमारे पास डीएनए मिला उसके अंदर दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे थे, जिनके अंदर हैवी नाइट्रोजन था. सारे नाइट्रोजन बेसिस कैसे थे, जिनके अंदर हैवी नाइट्रोजन था. दिस हैवी डीएनए कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. अगर हम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज में डाल के इसको रोटेट करेंगे, वी कैन ईजिली सेपरेट. तो जब हमने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमने देखा कि बैंड्स आए, और वो बैंड कहाँ आए, वो बहुत नीचे, क्योंकि हैवी नाइट्रोजन था वो बहुत नीचे आए. दैट्स हाउ वी केम टू नो अबाउट दिस. Understood? Then what did he do? Then they transferred it to ammonium chloride with 14 नॉर्मल नाइट्रोजन. 20 मिनट के बाद नॉर्मल नाइट्रोजन. उसके बाद फिर से सेंट्रीफ्यूज करके देखा. जब इस बार सेंट्रीफ्यूज किया तो एक हाइब्रिड बैंड आया जो इस हैवी वाले से थोड़ा सा ऊपर था. देखो इसका डिफरेंस ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर था. ये बैंड कैसा था, एक स्ट्रैंड 15 का और एक स्ट्रैंड 14 का. तो ये बैंड कैसा था, 14-15 हाइब्रिड का बैंड था. कैन यू सी, 1-1 पेरेंटल एंड 1-1 न्यूली सिंथेसाइज. 40 मिनट्स के बाद सेम सोल्यूशन पे जब दोबारा रन किया तो इन्होंने देखा ज़्यादा कैसे थे, 14 वाला ज़्यादा आया. ये देखो है ना, 14 का एक सेपरेट बैंड बन गया 14, लेकिन 15 यहाँ पर भी रिटेन हुआ. दिस प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस. यानी अल्टीमेटली जो 15 विषय फाबा पे किया, एंड अल्टीमेटली द DNA replication is semi-conservative. This was established. Now let us discuss the process of DNA replication. DNA replication में actually क्या होता है? There are certain enzymes that are required for DNA replication. Various enzymes are required as catalyst to catalyze the process of DNA replication. The most important of it is the DNA dependent DNA polymerase, जो actual polymerization enzyme होता है, जो polymer बनाता है. We require helicase, जो unwinding of the DNA में और replication fork बनाने में help करता है. DNA ligase, जो ultimately ओकाज़ाकी fragments को ligate करके complete strand बनाने में responsible होता है. Let us discuss the process of DNA replication first. There are certain genes, there's a certain part of DNA which is known as the origin or the origin of replication, which is responsible for beginning the replication. So DNA replication कहाँ पर start होगी, origin of replication पे start होगी. The complementary strands of DNA double helix are separated by enzyme called helicase. इसको unwindase भी कहते हैं. Unwinding हो जाएगी DNA strand की. Can you see, यहाँ पे unwinding हो गई, ये अलग हो गए. तो यहाँ पर क्या attach होंगे, SSBP, single strand binding proteins attach हो जाएंगे, which will stabilize this single strand and will not
अलाउ द रीवाइंडिंग, तो डीएनए ऐसे वाई शेप्ड में ही रहेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन से पहले क्या होगा, छोटा सा एक प्राइमर विच इज़ एन ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा सीक्वेंस जो है प्राइमेज उसको अटैच करा देगा। ठीक है, अब याद रखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, दैट इज एंजाइम एक ही डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए इस स्ट्रैंड पे ऐसे सिंथेसिस होगा, इस स्ट्रैंड पे ऐसे। तो जितना जितना अनवाइंड होता जाएगा इस स्ट्रैंड पे क्या होगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते जाएंगे विच आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। जिस पे कंटिन्यूस सिंथेसिस चल रहा है बेटा दैट इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड, जिस पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस चल रहा है दैट इज नोन एज द lagging strand. Clear everybody? The replication of the lagging strand generates small fragments known as Okazaki fragments. Ultimately डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा, इसको जोड़कर दोनों कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स बना देगा विद opposite polarity and two daughter DNA will be formed. So this is how the replication is going to occur in cells. Clear everyone? I hope you have all understood what I taught you and you are making complete use of this YouTube channel. Until next time, take care, study hard. Goodbye, children.